Hello guys, welcome to Exambi. This is Amit and I welcome you all to the part 10 of our ongoing RBI Grade B most important question series. The best view comes after the hardest climb. तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी अच्छी चीजें एक साथ हमें जल्दी जल्दी मिल जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. आपको यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. वंस यू हैव डन दैट हार्ड वर्क, देन आपके लाइफ आफ्टर दैट हार्ड वर्क, आपका लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू reach here you will have to go through this particular climb. That's the reason the best view comes after the hardest climb. So in that order, I am sure कि I believe आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चल रही है and you are putting your best hard work आप दे रहे हो. You are doing your mocks, you are judging yourself, you are evaluating yourself and you are consistently improving yourself. Here is the first question. As on July 31st, what percentage of 2000 bank notes have returned following their withdrawal? तो जब भी हम देखते हैं कि कोई बैंकिंग रिलेटेड न्यूज या आरबीआई रिलेटेड न्यूज जस्ट बिफोर योर एग्जाम आता है, दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. सो दिस काइंड ऑफ न्यूज आर एग्जाम वर्दी. तो ये पूछा जा रहा है कि भाई जो 2000 नोट्स विड्रॉल के बाद कितने परसेंटेज नोट्स हमारे पास वापस आ गए हैं. Yes, 97.92 percentage of the 2000 banknotes had returned following the RBI's announcement of their withdrawal from circulation on May 19, 2023. Which project aims to promote safe and environmentally friendly highway construction across 4 Indian states with World Bank support? यहाँ पे it is asking the name of the project. Project का क्या USP है? First thing is it is supported by the World Bank and it is safe and environmentally friendly highway construction. So the question is asking about the name of the project. Yes, the name is Green National Highway Corridors Project. ठीक है? The Green National Highways Corridors Project, which four states? Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh. ठीक है? And supported by World Bank. Coming to the next question, what is the revised real GDP growth forecast for India for financial year 24-25 according to the recent MPC? Recent MPC में आपको financial year 24-25 में GDP growth forecast क्या दिया गया है? It is asking about the real GDP growth. I am sure कि you know the difference between real GDP and nominal GDP. तो real GDP is at the बेस प्राइस लेवल. ठीक है, एक बेस प्राइस होता है, कोई ईयर लिया गया उसके हिसाब से यू आर गेटिंग द रियल जीडीपी. बट बेस प्राइस मतलब द प्राइसेस ऑफ सपोज 2000 ईयर हम ले लिए, उसी प्राइस में हमारे जो प्रोडक्शन हैं और गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो उसको काउंट करेंगे. नॉमिनल इज एट करंट प्राइस. करंट प्राइस में जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे दैट इज नॉमिनल जीडीपी. सो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी पे जब हम इन्फ्लेशन फैक्टर करते हैं वी आर गेटिंग द रियल जीडीपी. तो यहाँ पे परसेंटेज ग्रोथ पूछा जा रहा है, द आंसर इज 7.2%. ठीक है, फोरकास्ट इज 7.2% फॉर द ईयर 24-25. Which Indian bank was the first to integrate UPI and NCMC, that is National Common Mobility Card functionalities into RuPay credit cards? तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आपको पता है, एक कार्ड जो आप हर जगह यूज कर सकते हो, लाइक ऑल द मेट्रोज एंड जो रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री वहाँ पे यूज हो सकता है. तो फर्स्ट बैंक जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड में ये यूपीआई एंड एनसीएमसी को इंटीग्रेट कर दिया. Yes, this is RBL Bank. ठीक है, RBL Bank become the first private sector bank to offer UPI and NCMC functionalities integrated into RuPay credit cards. Next question, how much of the indexation benefit has the government proposed to restore for properties bought before July 23rd, 2024? तो ये न्यूज़ आया, आपको पता होगा कि बजट में इंडेक्सेशन को लेके डिक्लेरेशन हुआ था. इसके बाद द गवर्नमेंट हैज टू रिस्टोर द थिंग्स एज वेल. तो अगर आप अभी तक भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ एक्वेंटेड नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके फिर से बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ो आप, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आंसर इज 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज जुलाई 23rd 2024 से पहले खरीदा गया है तो 12.5% is tax without indexation would be there. Which initiative by the NSDC aims to support women entrepreneurs across the India? So National Skill Development Corporation एक नया प्रोग्राम लाई है, तो उसमें क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया जाएगा.
द आंसर इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है, WEP। तो NSDC focuses on providing skills, knowledge, networking opportunities to women entrepreneurs across our country. Next question, which Indian city was ranked as the most affordable major city for housing in 2024? आपको मोस्ट अफोर्डेबल मेजर सिटी फॉर हाउसिंग पूछा जा रहा है, तो here are options. Yes, it is Ahmedabad, ठीक है। Ahmedabad was ranked among the first affordable major Indian city for housing, requiring just 21% of income for home loan repayment. तो हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस समथिंग रिलेटेड टू यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आ जा रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेम इन योर रियल एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि अभी रिसेंटली ही यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आया है, ठीक है। तो एज फार एज जो फेज 1 इज कंसर्न, जो मेजर मेजर फिगर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, बोथ फ्रॉम द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यू हैव टू कवर। फेज 2 के लिए हमें और ज्यादा डिटेल में करना होगा। तो यहाँ पे यू कैन सी यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के तरह वीडियोस बाय सुशील सर, तो ये यूट्यूब में है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके इस पर्टिकुलर वीडियोस को देख लो, यहीं से नोट्स बना लो, नहीं तो इसको देखने के बाद यू गो थ्रू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वहीं से नोट्स बना लो, एंड डेफिनेटली विल सी good number of questions you will find in your exam, and both in phase 1 and phase 2 you will find good number of questions from union budget and economic survey. तो here is another question जो कि PYQ है, 9.99% of 299.99 equals to, यहाँ पे आपको फिल करना है, इजी वन, लेकिन थोड़ा अप्रोच अगर आपका सही होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट क्विक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 9.99% को विल टेक 10% ऑफ 300 ले जाते हैं इसको, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसका क्यूब प्लस 3, सॉरी, तो यहाँ पे देखो आप, द आंसर इज, यहाँ पे 10% ऑफ 300 इज 30, तो शुड बी, यहाँ पे इफ यू पुट द ऑप्शंस यू विल गेट 3 क्यूब प्लस 3, द आंसर इज योर ई, ठीक है। तो अप्रोच थोड़ा सही रखना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में लेके आपको करना है, एग्जैक्ट परसेंट निकालने के लिए नहीं मत बैठ जाना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन स्टेटमेंट, आपको बताना है एजम्पशंस कौन से सही है, ठीक है। Attempting cup of Georgia now awaits you at every street corner, so no matter who you are and where you go, a Georgia vending machine will hand you the same clean delicious cup of tea in regular adrak ilaichi masala, and if you're looking for a change, try the regular mocha cappuccino coffee. One sip will make you realize why every other alternative is mere compromise. So an advertisement. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, assumptions are most of the people need delicious cup of tea or coffee with a change in taste. Second assumption, every person is addicted to either tea or coffee. तो every person is addicted यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन it is talking about tea or coffee with change in taste, right? यहाँ पे there are a lot of flavors they are offering, तो yes, if only assumption 1 is implicit, तो the answer should be A. Okay, the next question, in each of the question given below 4 words are given in bold, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई इसके कोई पर्टिकुलर वर्ड को आप किसके साथ रिप्लाई करोगे, इफ यू थिंक कि ये सब सही है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी चेंजेस, तो ई शुड बी योर आंसर। अ प्रेस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बाय द मिनिस्ट्री, नहीं, ये दिस शुड बी चेंज्ड, जो जो चेंज होगा हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। प्रेस स्टेटमेंट वर्ड बाय द मिनिस्ट्री सेड दैट मिस्टर शाह हेल्ड एक्सटेंसिव डिस्कशन, ये जा रहा है इसके साथ, ऑन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, इशूड काउंटर, नहीं देखो, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, राइट। प्रेस स्टेटमेंट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ the ministry said Mr. Shah held extensive discussion on various issues related to national security including counter terrorism, तो A और C जहाँ पे होगा, A और C कहाँ पे है, only this particular option। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, threat from extremism, cyber security, border security, threats from across border elements to the integrity and stability of the nation, so C is the answer, ठीक है, तो यहाँ पे C is the correct answer. So this is it for this particular video. I hope you are able to judge yourself कि आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कैसे अच्छे से किए हो, और QRE में भी where do you stand. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल। कोई भी क्वेरी है hello@iexambee.com पे आप हमें मेल कर सकते हो। प्रिपेयर 50% फास्टर विद iexambee. दिस इज अमित साइनिंग ऑफ।